Good morning, class second. Today we are going to revise the chapter first of your computer subject, which is computer and its part. Okay. First of all, you should know about what is computer. Computer is an electronic machine which is used to do different tasks of work life, like play games, calculations, watch movies, receive messages, etc. Okay, but it is created to make our work easier. Okay, it is used almost everywhere. Okay, schools, homes, office, everywhere. Okay, and it has many parts, and all the parts all together combined, and then it is known as computer system. Okay, so let's start this chapter. The very first topic of your chapter is features of computer. Computer has a wonderful features. Okay, has different types of wonderful features. Okay, the first one is storage. Okay, what is storage? Storage is a feature of computer which stores a large amount of information. Okay, data and information, and never forgets it. Okay, मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उसे कभी वो भूलता नहीं है. सेकेंड फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड. कंप्यूटर इज वेरी फास्ट. ओके, मीन्स इट वर्क्स वेरी फास्ट. इट कैन परफॉर्म different types of task in same time. Means we can do typing, also we can search something, we can play music also. Means different types of things we can do at same time. So computer is a very fast device. Computer has very good accuracy also. Computer does not make any mistake. Okay, while calculation or performing any kind of task, computer does not fails. Okay, it has a very great accuracy for performing the task. Okay, computer is intelligence also. Computer never gets tired or bored of doing same work or doing work 24 hours without asking any rest. Just for example, if I give any work or a huge amount of work to do you in the certain time period, and after that completion of that task I will say you again to do another piece of work, you will say that no sir, I am tired, I need rest. After rest only I will be able to do the work. Okay, but दिस इज नॉट द केस इन कंप्यूटर. कंप्यूटर को आप पावर सप्लाई दीजिए, उसके पार्ट्स को आप प्रॉपर रखिए, तो आप जब तक उससे काम कराना चाहते हैं वो करने वाले हैं. हाँ, वाइल परफॉर्मिंग लॉन्ग टाइम पर टास्क अगर करते हैं तो वो थोड़ा हीट हो सकता है. ओके, गर्म होने से उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिग्रेड हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, बट वो कभी वो आलसी या थकने वाला नहीं हरकत करेगा जो मतलब ह्यूमंस करते हैं. ओके, so this was the features of computer. Okay, it is a great storage. It can store a humongous amount of data and information and never gets forget also. Until or unless we are going to delete it, it's not going to be vanished. Second, it has a very good speed. It can perform tasks at very good speed. It has a very great accuracy. It can perform tasks at a very good speed, as well as it is very much accurate also. Okay, next one is elegance. It does not get tired or need rest for working. Okay, and next topic is uses of computer. Computer हम कहाँ use करते हैं. Okay, we use computer at different places. Just for example, we use computer at schools. Okay, to keep the details of students, teachers and records. In libraries, everywhere we use computer in the school to prepare report cards and
store the informations of students, and we do practicals also in computer lab. Okay, so computer is used in school also. Computer is also used in at offices to type, to take printout of data and information, to send and receive emails, message. Okay, have you understood about computer? Its uses are in school, at office, at shops, दुकानों पर भी यूज होते हैं, to take the print out of the bills. Okay, जो भी बिल वगैरह परचेज करते हैं अगर समथिंग, तो वी नीड बिल. विदाउट बिल तो हमें कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट है वो हमने ही लिया है या फिर उस शॉप ने ही दिया है. ओके, सो फॉर टेकिंग द प्रिंट आउट्स एट शॉप्स कंप्यूटर इज नेसेसरी. इन बैंक्स में भी कंप्यूटर यूजफुल होते हैं. वाई कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन बैंक? टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए. बैंक्स में कहाँ से कौन एटीएम से कौन इंसान कितना पैसा वो निकाल रहा है या डिपॉजिट कर रहा है, विड्रॉ एंड डिपॉजिट, कितना ढेर सारा डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए बैंक कंप्यूटर्स रखते हैं. हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ होता है ताकि जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए. रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर यूज़ हम करते हैं ताकि ट्रेन्स के डिपार्चर और अराइवल टाइम्स के लिए होते हैं. यहाँ तक कि ट्रेन्स के जो टिकट बुक हम करते हैं वो भी हमारे उनके थ्रू होते हैं. ठीक, तो कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये आप समझ गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, बेसिकली कंप्यूटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप, बड़ा साइज होता है. ठीक, जिसे हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं. और बेसिकली डेस्कटॉप मीन्स नाम से क्लियर है, उनको एक डेस्क चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसके ऊपर उन्हें हम रख सकते हैं. ओके, सो थोड़ा साइज में बड़ा होता है. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर इज लैपटॉप कंप्यूटर. ठीक, नाम से ही लग रहा है लैप मीन्स गोद. अगर हम कोई कंप्यूटर को अपने गोद पर रख सकें मीन्स थोड़ा सा छोटा साइज होगा इन कंपैरिजन टू डेस्कटॉप, और वही वर्क करेगा जो हमारा पीसी या डेस्कटॉप करता है. ओके, व्हाट इज लैपटॉप? स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू डेस्कटॉप. और लैपटॉप क्या करता है? इजीली कैरीड होता है, मीन्स थोड़ा पोर्टेबल होता है. हम उसे लेकर के एक जगह से दूसरे जगह में जा सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं. ठीक, लैपटॉप के बारे में समझ गया आप लोगों ने. नेक्स्ट द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टैबलेट. ठीक, टैबलेट ये एक तरह से मोबाइल का बड़ा वर्जन है. ठीक, हम सब लोग मोबाइल में ये वीडियो मोबाइल में ही देख रहे हैं. अगर थोड़ा सा ये बड़ा वर्जन हो जाए मोबाइल का, दैट इज नोन एज टैबलेट. ठीक, टच स्क्रीन होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसमें पेन भी दिया रहता है ताकि अगर कुछ हमने करना है ऐसा तो फिंगर्स या पेन के थ्रू हम उसमें कर सकते हैं. ठीक, थोड़ा साइज में बड़ा होता है मोबाइल से, उसे टैबलेट करता है. ठीक, तो ये 3 क्या है? ये तीनों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप, सेकंड वन लैपटॉप एंड थर्ड वन इज टैबलेट. Okay, now coming up to the next topic, which is parts of computer. Computer has several types of part. Okay, many different types of part, and all the parts come together, work together, then it is known as computer system. Okay, the first part of computer is monitor. Okay, monitor is nothing but just like a TV. Okay, वो TV की तरह दिखता है. वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है. व्हाट डज इट डिस्प्ले? डिस्प्लेज द आउटपुट रिजल्ट. जो भी हम इनपुट डेटा करते हैं प्रोसेस होने के बाद जो स्क्रीन पर दिखता है उसे आउटपुट कहते हैं. ओके, और आउटपुट को मॉनिटर पर ही हम विजिबल करते हैं, इसलिए मॉनिटर को वी ऑल्सो से एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ठीक, मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज आपके LCD एंड सेकंड वन इज LED. ओके, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थोड़ा सा फ्लैट होता है. ठीक, स्क्रीन लेस स्पेस होता है, पावर सप्लाई कम लेता है. ठीक, LCD. अब नेक्स्ट टाइप है आपका LED, लाइट इमिटिंग डायोड. फुल फॉर्म दोनों के आप याद रखिएगा. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड. ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं डायोड. ठीक, अगर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो डायोड को और अच्छे से वो एक्सप्लेन किए जाएंगे.
डायोड का एक ये बेनिफिट होता है कि ये बहुत कम पावर सप्लाई लेता है, ठीक, अराउंड 40% पावर सप्लाई कम लेता है इन कंपैरिजन टू एलसीडी, ठीक। लाइट वेट तो दोनों है, ठीक है, लेकिन जब पावर सप्लाई कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, जैसे एक ट्यूबलाइट है, ठीक, वो सप्लाई थोड़ा ज़्यादा लेगा एक छोटे से बल्ब के तौर पर, ठीक है। उसी तरह आपका फैन हो गया, वो क्या करेगा, कम पावर सप्लाई लेगा, किसके कंपैरिजन में, एसी के कंपैरिजन में, ठीक, समझ में आया। उसी तरह एलसीडी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इट इज अ काइंड ऑफ मॉनिटर but it takes little more power supply as compared to LED, light emitting diode, okay, around 40%. Now next part of your computer is keyboard. कीबोर्ड्स के अंदर छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसपे कुछ वो डिस्प्ले रहते हैं, दैट इज नोन एज कीज, ओके। उसमें 104 कीज होते हैं, कितने, 104 कीज, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होते हैं, वो छोटे छोटे बटन्स, उन्हीं को हम कीज कहते हैं, ठीक। कुछ स्पेशल टाइप के कीज होते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल्स के लिए, वर्ड्स के लिए, ठीक, अलग अलग कीज होते हैं। वो कीबोर्ड किस लिए बेसिकली यूज होते हैं, टू एंटर द डाटा, ओके, इनटू द कंप्यूटर, ठीक। तो ये मॉनिटर जो था दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस, ठीक, जो रिजल्ट आ रहा है उसको वो बाहर दिखा रहा है। But secondly, keyboard basically is a input device. Whatever we type, that data is transmitted inside the computer. Okay, simple. Next one is processing. Okay, next part of computer is processing. CPU, Central Processing Unit. Okay, this is known as the brain of computer. ठीक, जितने भी वो आपके इनपुट डेटा आ रहे हैं उनको प्रोसेस करने का काम इन्हीं का है, ठीक। ऐसे इनको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं बोला जाता है। इट इज गोइंग टू बी प्रोसेसिंग ऑल द डेटा वट एवर यू आर गोइंग टू टाइप थ्रू द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ओके। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर के वर्किंग को ये कंट्रोल करते हैं। इनके पास एक ट्रमेंडस मेमोरी होती है, ठीक, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, जिससे ये सब कुछ को क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक। अब किसको क्या कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ सीपीयू का काम, ठीक। तो अगर ब्रेन है तो मेमोरी भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना सबका याद रखे कौन क्या कराना है, ओके। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज माउस। कंप्यूटर माउस हैज 2 बटन्स, ठीक, 2 बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील के हेल्प से हम स्क्रीन में ऊपर नीचे जाएंगे, बटन से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक। माउस के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, उसके हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ माउस वी कैन प्ले गेम्स, बाय द हेल्प ऑफ माउस वी कैन यूज वी कैन सेलेक्ट समथिंग, एडिट इट, कट इट, पेस्ट, डिलीट इट, ये सारे फंक्शंस वी कैन परफॉर्म यूजिंग माउस। व्हेन वी यूज माउस, जब हम माउस यूज करते हैं, ठीक, अब पॉइंटर स्क्रीन पर जो मॉनिटर होता है उस पर एक पॉइंटर बना रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक, वो भी जैसे जैसे माउस को माउस पैड पर वो करेंगे उसी तरह पॉइंटर भी उसी अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, ठीक। तो ये 4 जो थे, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। अगर ये 4 मिल जाएंगे तो आप कंप्यूटर्स को ईजिली रन करा सकते हो। कौन है 4 वो, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस, ठीक, ये 4 से आप कंप्यूटर बेसिकली यूज कर सकते हो। बट for performing better result or for doing a specific type of work, we should add other parts of computer to get better output or results, okay, or input results. Just for example, if we are going to take the printout of something, without using printer we won't be able to take the printout of any document, okay. So printer is also an important part of computer which takes the printout of whatever we give the command to take the printout of it. Printer 3 types के होते हैं। फर्स्ट वन आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड वन लेजर प्रिंटर एंड थर्ड वन इज इंकजेट प्रिंटर। इन तीनों के डिफरेंस आप हायर क्लासेस में समझेंगे, बट
ऑन एन एवरेज, आप ये समझ ले तीनों 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट हेडफोन्स, हेडफोन हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक, ऑन द ईयर, एक होता है ना कान के ऊपर ऐसे लगाते हैं, फिर ये वो कवर रहता है स्टिक से, ठीक, तो वो क्या है हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या वर्क करते हैं, वो बेसिकली दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर हमें हमारा जो भी ऑडियो है वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें सॉन्ग सुनना है लेकिन बाहर के लोगों को हम नहीं चाहते कि वो सॉन्ग सुने, तो हम क्या करेंगे, ईयरफोन लगा लेंगे या ईयरबड लगा लेंगे और फिर प्ले करके अपना सॉन्ग सुनेंगे, ठीक। इससे क्या होंगे, अदर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेडफोन। सॉरी, समझ में आ गया हेडफोन्स के बारे में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीकर। व्हाट डज द वर्क ऑफ स्पीकर डू? स्पीकर बेसिकली गिव्स अस द आउटपुट ऑफ ऑडियो, ओके, मीन्स आउटपुट ऑडियो देता है ये। जैसे हेडफोन्स क्या कर रहे थे, हेडफोन्स केवल हमें सुनाई दे रहे थे, ठीक, हेडफोन्स जो साउंड दे रहे थे वो केवल हमारे लिए था, ठीक, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब किए बगैर हम सुन रहे थे। लेकिन स्पीकर में क्या है, ये सबके लिए है, ठीक। जैसे वो डीजे वगैरह नहीं बजता है गाने में, तो वो क्या बजेगा तो क्या पूरा मोहल्ला सुनेगा, ठीक, समथिंग लाइक दैट, उसको स्पीकर कहेंगे, ठीक। स्पीकर कोई अलग मतलब एक एक इंसान के लिए एक एक वो नहीं होगा, एक बजेगा तो अच्छे साल से एरिया में वो कवर करेगा, ठीक। डिफरेंस समझ में आ गया हेडफोन स्पीकर के। नेक्स्ट आते हैं आपके CD रोम, ठीक, CD रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके। ये बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी कभी यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये मूवी, म्यूज़िक, इन सब को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता था। एक सर्कुलर डिस्क टाइप का नहीं होता, तो गोल टाइप का डिस्क जिसमें छोटा सा छेद रहता था और बड़े मतलब बढ़िया बढ़िया अगर उसको वही रहता था, कलर भी अच्छा अच्छा दिखता था, दैट इज नोन एज CD डिस्क, ओके। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर इज UPS। द फुल फॉर्म ऑफ UPS इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक। जैसे कि आप इसके नाम में ही क्लियर है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये जब लाइट कट जाती है, ओके, व्हेन पावर इज नॉट सप्लाइड टू द सिस्टम,